Today we are going to discuss about LCM and HCF. Very important topic. See, if you see, every year at least one question is asked based on LCM and HCF. 2019 में 2 questions पूछा है and every year like years before these years also at least one question is asked from LCM and HCF. So 2023 maybe you can expect one question. So in this class we will discuss basic concepts like what is LCM, what is HCF, how to do LCM, how to do HCF, like LCM of fractions etc. सब then कुछ formulas है वो डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी यूपीएससी में पूछा है वो डिस्कस करेंगे. सो शुरू करते हैं. सी फर्स्ट थिंग इज एलसीएम. देखो एलसीएम का मतलब क्या है? दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इसको लीस्ट को बोल सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. अब देखो लीस्ट का मतलब पता है हमें, लीस्ट है. कॉमन वी नो दिस कॉमन बिटवीन फ्यू थिंग्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इज मल्टीपल. सो मल्टीपल ये होता है कि लाइक से there is 10. So multiple of 10 is 10 into 1. अगर 1 से मल्टीपल किया तो 1 जो भी 10 टेबल में आता है दैट इज मल्टीपल. जो भी 10 का टेबल में आता है दैट इज मल्टीपल. सो 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 50, 60, 70 सो ऑन. सो जो 10 का मल्टीपल्स है ये सब है. ठीक है. जैसे सिमिलर वे इफ यू से मल्टीपल्स ऑफ 12, सो मल्टीपल्स ऑफ 12 इज 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36. ठीक है. देन 48, 12 5s are 60, then 12 6s are 72 सो ऑन. जो भी ये सब मल्टीपल्स है, ये इन्फिनिटी तक जहाँ तक मल्टीपल्स हो सकता है वो पूरा मल्टीपल्स आएंगे. अब देखते हैं कि एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स पता करना है तो कॉमन क्या है. जैसे एलसीएम ऑफ क्वेश्चन होता है कि एलसीएम ऑफ 10 कामा 12 ये क्वेश्चन है. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल. देखो पहले कॉमन बिटवीन दीज टू. व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज टू? दैट इज 60 is common between these two, right? So if you go on, so इधर 120 भी आएगा that is 10 12s are and 12 10s are भी 120 आएगा. ये दोनों भी कॉमन है. बट एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 60. सो आंसर वुड बी 60. So 60 is the lowest common multiple of 10 comma 12 or LCM of 10 comma 12. So let's see one more question, that is LCM of 8 and 12 क्या है? से similar way. So 8 का multiples how you can write? 8 16, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48 so on. Then 12, so 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60 so on. So then again common चीज़ है. 24 is common. ठीक है. 48 is common.
सो LCM इज क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 24. So LCM of 8 comma 12 is 24. So least common multiple is LCM. So see, for every number you cannot do this, right? So there is a method to calculate LCM. That is, see, if 8 comma 12 का LCM है, so these method you might have learned in school also. So you can take number which divides both these numbers. So like 2, so 2 4s are 8 and 2 6s are 12. Then again 2 2s are 4, 2 divided by 4, 2 3s are 6. So here further you cannot simplify it. So then it like 2 into 3, like 3 into 2, then 2 into 2, then 2 into 2. That is 3 2s are 6, 6 2s are 12 and 12 2s are 24. So 24 is LCM of 8 comma 12. तो same like that. So ऐसा LCM calculate करना है. So similar way you solve these questions like LCM of 10 comma 20 comma 30. ये 3 नंबर का LCM है. कैसे कैलकुलेट करोगे? सो इट इज लाइक 10 20 30. सो हियर सी any number you can take. Let's say you can take 10 simply. 10 1s are, 10 2s are and 10 3s are. ठीक है. अब देखो इधर फर्दर यू कैन नॉट सिंप्लीफाई, राइट? ठीक है. सो 2 into 3 into 2 into 1 into 10. So 3 into 2 into 1 into 10. So 3 2s are 6, 6 into 1 6 and 6 into 10 is 60. So 60 is the LCM of these three numbers. So अगर ऊपर मेथड से भी देखेंगे तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा? देखो 10 20, 10 का ये होगा 20 30 40 50 60. देन 20 का होगा 20 40 60 80 so on. देन 30 का होगा 30 32s are 60 90 so on. So common is 60 between the three, least common. So ये होगा LCM. Again solve a question that is LCM of 12 comma 15 comma 20. So LCM करो. So 12 15 20. So here you can take like 5. So 5 में 12 divide नहीं होता. So you will again write 12 here. Then 5 3s are 15, 5 4s are 20. So here you can take 4. So 4 3s are, again 4 से 3 divide नहीं होता. So 3 you write down here and 4 1s are 4. So 4 divide किया तो 1 आएगा. So then again here you can write 3 3 1 3 again 1 3 by 3 1 then again 1. So here it is like 1 into 1 into 1, ये तो 1 हो जाएगा. So 3 into 4 and 4 into 5. So like 5 4s are 20, 20 into 3 that is 60 LCM आएगा. ठीक है. सो सिमिलरली यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. 12 15 और 20 ले लो और 2 से करो. देख 6 15 डिवाइड नहीं होता है सो इसीलिए. देन हियर 10. हियर अगेन यू कैन टेक लाइक 3 3 2s are 6, 3 5s are 15 एंड 10 नहीं होता तो 10 ऐसा ही लिखेंगे. देन हियर यू कैन टेक 5 5 2 डिवाइड नहीं होता सो 2 यू विल राइट. 5 1s are and 5 2s are. Then again 2 you can take 2 1 1 1. Again if you calculate 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 2s are 60. So same आएगा. कोई भी LCM method है. Is like most of you are aware of this. So
आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड अबाउट एलसीएम। ठीक है, ये हो गया एलसीएम में। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। जो भी नंबर दिया हुआ है मल्टीपुल्स का लीस्ट कॉमन जो मल्टीपुल होता है वो एलसीएम होता है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट HCF। सो HCF होता है, फुल फॉर्म इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो हाईएस्ट पता है आपको क्या है, कॉमन अगेन दोनों में कॉमन। अब फैक्टर क्या है वो पता करना है। सो फैक्टर इज लाइक से एग्जाम्पल 12 का फैक्टर है। सो फैक्टर्स ऑफ 12 इज 12 जिस टेबल्स में आता है, लाइक 1 टेबल में आता है 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12। अगेन 2 टेबल में आता है 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। अगेन 3 टेबल में 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। सो अगेन 4 इंटू 3 is equal to 12. Again 6 into 2 is equal to 12. Again 12 into 1 is equal to 12. So जितने भी टेबल्स में ये सब है ये फैक्टर्स ऑफ 12 हो गया। सो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या? 1 2 3 4 6 12, ये सब फैक्टर्स है। सो मल्टीपुल क्या है? जो भी नंबर है वो नंबर का टेबल, बट फैक्टर इज जिस नंबर है वो किस टेबल में से थ्रू आता है। ठीक है, सो ये सब फैक्टर हो गया। देन आता है कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व्हेन 2 नंबर्स आर देयर, लाइक से नंबर्स लाइक 12 एंड 18 है। लाइक if question is like HCF of 12 comma 18, so 12 का factors is 1, like 2 क्योंकि 1 is factor of everything, right? 2 again 2 into 6, so इधर जो भी लिखा है देखो, again 3 into 4 is 12, again 4 into 3 is 12, then 6 into 2 is 12, then 12. So 18 का 1 2 9s are 18, 3 6s are 18, then 6 3s are 18, then 9, then 18। अब देखो 1 भी इधर कॉमन है, ठीक है, और 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, बट हाईएस्ट कॉमन क्या? 6 है। सो 6 इज HCF। HCF इज इक्वल टू 6 क्योंकि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपुल है तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये हो गया। अब HCF कैसे कैलकुलेट करना है? देखो अब 12 और 18 का HCF कैलकुलेट करना है। सो यू विल टेक द लोवेस्ट नंबर अमॉन्ग द गिवन नंबर्स से, लाइक इन दोनों में छोटा नंबर क्या है? 12 है। सो यू विल टेक 12 एंड डिवाइड इट बाई 18। 18 को डिवाइड करो 12 से। सो 12 1s are 12, सो रिमाइंडर आ गया 6। अब ये 6 है तो 6 को इस नंबर इधर आएगा तो उधर डिवाइड करोगे। सो 6 2s are 12, सो रिमाइंडर 0। सो 6 इज द HCF। जो भी नंबर है जहां रिमाइंडर 0 आता है वो HCF बन जाएगा। ठीक है, देखो इधर जैसे HCF 6 आ गया, सो सेम नंबर का इधर भी HCF 6 आ गया। देन लेट्स डू one more example.
क्वेश्चन इज HCF of 20 comma 72 क्या है? So देख अगेन टेक स्मॉल नंबर एंड बड़ा नंबर को डिवाइड करो उससे. सो 23 आर 60, देन 12 रिमाइंडर आ गया. सो 12 ये नंबर इधर आएगा, 12 को 20 से करेंगे. सो 12 ones आर 12. सो हियर 8 इज द रिमाइंडर. फिर अगेन दिस नंबर विल कम बिकॉज जब तक 0 आएगा तब तक करना है रिमाइंडर. सो 12 ones आर 8, then 4 is the remainder, again 4. So 8 इधर आएगा 8. So 4 2s are 8. So remainder 0. So remainder 0 आ गया कहाँ? 4 पे. So HCF क्या होगा? 4 होगा. So जब तक रिमाइंडर 0 जाएगा तब तक चलता रहना है. तो जब आएगा रिमाइंडर 0 वो HCF हो जाएगा. So for 20 and 72 का. ठीक है. This is the process. See, in 3 numbers also you will do the same thing. 3 numbers का HCF है. So first you will take this number with second number, then third number. That also will practice. Don't worry. So that is basic thing about LCM and HCF. Now let's do fraction based LCM and HCF. Fraction based LCM and HCF. देखो UPSC has already asked fraction based LCM and HCF in 2020. So important है. So first is fraction क्या है? So fraction is number which can be written in A by B form. Like A is numerator, ठीक है, and B is denominator. We have already discussed this concept fraction. ठीक है. Then आता है कि fractions numbers है, जैसे इधर हमने डिस्कस किया है भाई नॉर्मल नंबर्स है उनका LCM एंड HCF कैसे निकालना है. सो जो 12 एंड ऑल, जो फ्रैक्शन नंबर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? फ्रैक्शंस लाइक से LCM of 2/5 comma 6/7 comma 8/9 क्या होगा? ठीक है. या क्वेश्चन ये भी हो सकता है HCF of 2/5 comma 6/7 comma 8/9. ठीक है. ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है, राइट? सो हाउ टू कैलकुलेट that? So for that, to do LCM of fraction based and HCF of fraction based, there are formulas. So formula क्या है? देखो LCM is equal to LCM of numerator by HCF of डिनोमिनेटर. ठीक है. ये है LCM कैलकुलेट करना है तो देन HCF कैलकुलेट करना है तो HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर. ये है फॉर्मूलास. अब देखो मैं लेट मी एक्सप्लेन इट विथ दिस एग्जाम्पल. देखो इसका LCM ऑफ 2/5 कामा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो क्या करना है? LCM ऑफ न्यूमरेटर्स. सो न्यूमरेटर्स क्या है इनका? देखो इसी क्वेश्चन का LCM निकालना है. LCM इज इक्वल टू, ठीक है, LCM ऑफ न्यूमरेटर क्या है? 2, 6, 8.
So LCM of 2 comma 6 comma 8 by HCF of डिनोमिनेटर क्या है 579 सो देखो एलसीएम क्या होता है सो 2 और 6 एंड 8 का एलसीएम सो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है सो 2 6 और 8 सो 2 टेबल में 2 1 जार 2 2 3 जार 6 2 4 जार 8 so here again there is no further simplification so it is like 4 3s are 12 12 2s are 24 so 24 is the LCM then HCF of 579 so देखो again take the least number 5 or 7 5 1s are 5 2 so ये आएगा so 5 so 2 2s are 4 so 1 आएगा so 2 इधर आएगा 1 2 ज़ा 2 सो रिमाइंडर आ गया 0 सो HCF हो गया 1 2 एंड 5 एंड 7 का अब 5 एंड 9 का भी देखो 5 9 सो 5 1 ज़ार 5 सो रिमाइंडर इज 4 सो 5 4 1 ज़ार 4 1 4 सो 1 4 ज़ार 4 so remainder 0 so इधर भी 1 आ गया so HCF is 1 so HCF of 579 is 24 by 1 that is 24 ऐसा तो LCM is LCM of numerator जो भी दिया हुआ है वो ऊपर आएगा LCM आएगा ऊपर of numerator and HCF पूछा HCF is HCF of numerator देखो अभी इसी का HCF कैलकुलेट करता है सो HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर HCF ऑफ 2 कामा 6 कामा 9 2 6 8 सॉरी 2 6 8 ठीक है देन LCM ऑफ 579 क्योंकि LCM ऑफ डिनोमिनेटर है देखो अब HCF कैलकुलेट करो इसका HCF इज 2 कामा 6 का 2 3 ज़ार 6 सो 0 रिमाइंडर आ गया तो 2 इज द HCF देन अगेन 6 एंड 8 का करो 6 8 6 1 ज़ार 6 6 2 एंड 6 इधर आएगा सो 2 3 ज़ार 6 सो HCF दोनों में 2 आया तो HCF इज 2 LCM ऑफ 5 कामा 7 कामा 9 सो इनका HCF क्या होगा देखो बेसिकली ये दो तीनों प्राइम नंबर्स है कोई और उसमें नहीं आएगा नंबर सो 5 इंटू ठीक है 7 इंटू 5 इंटू 9 आएगा दैट इज 315 HCF हो जाएगा 2/315 ठीक है दैट इज द HCF सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द HCF सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन बेस्ड LCM एंड HCF कैसे कैलकुलेट करना है सो दो फॉर्मूलास रिमेंबर करना है ठीक है और LCM एंड HCF करना है ठीक है देन लेट्स गो टू one more topics ठीक है that is relation between LCM and HCF relation between LCM and HCF अब क्या रिलेशन है देखते हैं देखो इसका भी एक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF का देखो वेन एवर 2 नंबर्स इज गिवन लाइक से 10 कामा 20 आर गिवन 2 नंबर्स their product that is 10 into 20 is equal to LCM into
HCF ऐसा बनता है। चूंकि इनका इन दोनों नंबर्स का जो भी एलसीएम होगा, इन दोनों नंबर्स का जो भी एलसीएम होगा एंड इन्हीं दोनों नंबर्स का जो भी HCF होगा, वो दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट से इक्वल होगा। दैट इज x इंटू वाई इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये होगा इक्वेशन, ठीक है। x इंटू वाई इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये होगा। अब देखो एग्जाम्पल कर देखते कैसे चेक करते। देखो 10, 20 का ही ले लेते हैं। सो 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब LCM ऑफ 10 20, 10 1 सर 2 सर, सो दैट इज 20 इज LCM एंड HCF क्या है 10 20, so 10 2s are 20, so 0, so 10 is HCF 10। अब देखो LCM इंटू HCF कितना हो गया, LCM इंटू HCF 200 और नंबर का मल्टीप्लाई 10 इंटू XY भी कितना हो गया, ये भी 200 हो गया। सो 200 200 है। सो जो भी नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन किया तो वो उन्हीं नंबर्स का LCM एंड HCF के मल्टीप्लिकेशन से इक्वल होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ, एंड दिस अप्लाइज ओनली फॉर टू नंबर्स। ये नहीं कि XYZ में भी काम हो जाएगा, नो, दिस अप्लाइज ओनली फॉर टू नंबर्स। Product of any two numbers is equal to product of their LCM and HCF। ये सिंपल फंडा है। सो इससे देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज लाइक द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 936 and their HCF is 4. One of the number is 72. Find the other number, ठीक है। देखो LCM ऑफ टू नंबर्स दिया है हमें एंड HCF भी दिया हुआ है, वन ऑफ द नंबर भी दिया हुआ है। सो लाइक 72 इंटू से अदर नंबर इज y इज इक्वल टू प्रोडक्ट LCM इंटू HCF, राइट। LCM इज 936 एंड HCF इज 4, सो लाइक y इज इक्वल टू 936 इंटू 4 बाई 72। सो कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, देखो 4 2s are 36 एंड हियर 2 18 एंड 18 से ये कट जाएगा 52 टाइम्स में। सो y इज इक्वल टू 52। अब 52 इंटू 72 इज इक्वल टू 936 इंटू 4 इक्वल आएगा, ठीक है। देन लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो टू नंबर्स क्या है, टू नंबर्स दिया हुआ है x 180, y इज इक्वल टू 45 एंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स दिया हुआ है दैट इज 180। देन पूछ रहा है कि भाई HCF कितना है, HCF कितना बताओ। तो देखो क्या है 180 इंटू 45 इज इक्वल टू LCM is 180 इंटू HCF। अब HCF कैसे, देखो ये 180 कैंसिल हो गया, HCF इज इक्वल टू 45। तो ऐसे सिंपल एक फॉर्मूला क्वेश्चन। देखो अभी तक UPSC नहीं पूछा है, आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन
मतलब ये कि CAPF एग्जाम्स में, स्टेट PCS एग्जाम्स में पूछ रहा है, UPSC कैन ऑल्सो आस्क, क्या पता बस एक फॉर्मूला है, आराम से हो जाएगा. सो that is the theory part. Now let's move to previous year questions from LCM and HCF. So let's solve the 2014 का क्वेश्चन. देखो 2014 का UPSC has asked क्वेश्चन. देखो LCM and HCF में UPSC ask applied questions. देख सीधा ये नहीं पूछेगा कि 3 नंबर दे दिया, LCM बताओ, HCF बताओ. नो, UPSC आस्क अप्लाई बेस्ड क्वेश्चंस. देखो जैसे हम देखते हैं. सो ये बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स. ठीक है, एवरी 18 मिनट्स. सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स एंड थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स. इफ ऑल द 3 bells ring at same time at 8 o'clock in the morning. ठीक है, एट वॉट अदर टाइम विल दे रिंग टुगेदर. देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमें LCM अप्लाई करना है. मैं बताऊंगा कि क्यों LCM लगेगा इस क्वेश्चन में. देखो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट बेल है वो हर 18 मिनट्स में रिंग करती है. ठीक है, सेकेंड बेल है इट रिंग्स इन एवरी 24 मिनट्स. ठीक है, थर्ड बेल रिंग्स इन एवरी 32 मिनट्स. ठीक है, एवरी 32 मिनट. सो फर्स्ट रिंग, फर्स्ट बेल इस टाइम में होगा. सो सेकेंड रिंग है वो 32 मिनट्स में होगा ना. सेकेंड रिंग 32nd मिनट में भी होगा. ठीक है, देन इधर 48 मिनट्स में अगेन रिंग होगा ये बेल. ठीक है, देन ये 64 मिनट्स में अगेन रिंग होगा. देन थर्ड रिंग कि इसमें जैसे हमने LCM में किया, लाइक हर सक्सेसिव उसमें, ये तो बेसिकली मल्टीपुल्स ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल ही हमें देखना है. कॉमन मल्टीपुल्स ही आ रहा है, राइट. सो सेम वे फिर आफ्टर 18 मोर मिनट्स दिस थर्ड रिंग अगेन होगा. सो ये एक कॉमन मल्टीपुल्स ऑफ 18 का है, कॉमन मल्टीपुल्स ऑफ 24, कॉमन मल्टीपुल्स ऑफ 30. अब LCM कैसे करना है, देखो ये 3 नंबर है. सो इसको क्या है, LCM ऑफ हमें 18, 24, 32 लेना है. ठीक है, LCM, क्योंकि देखो जैसे हम कॉन्सेप्ट में देख रहे थे, लाइक LCM ऑफ 10, 20, 30 का ऐसे 10 टाइम्स में एक बार रिपीट होता है, 20 बार एक बार आता है. ऐसा सेम वे में, सेम सीक्वेंस में ये जा रहा है, राइट. सो विल टेक LCM ऑफ 18, 24 एंड 32. उससे क्या पता चल जाएगा हमें कि ये पता चल जाएगा कि सारे तीनों एक बार कहाँ रिंग होगा. क्योंकि एक दिया ना 3 bells रिंग एट सेम टाइम एट 8 o'clock. उससे क्या होगा कि लीस्ट कॉमन जो मल्टीपुल आएगा उस टाइम में तीनों एक बार में. क्योंकि ये देखो 32 मिनट्स इधर जाएगा, देखो हम LCM करते फिर उसके बाद पता चल जाएगा. चलो से 2 9, 2 9s are 18, then 12, 2 12s are 24, 16, 2 16s are 32. Again say take 3, 3 3s are 9, 3 4s are and 16. Then again take 4, 3 4 1s are 4, 4 4s are 16. से अगेन 3 4 का तो कुछ और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा. सो इट इज़ लाइक 3 4 एंड ये कम्स आउट टू बी 288 मिनट्स. क्योंकि ये सब मिनट्स में है ना, 18, 14, 24 एंड 32. सो 288 मिनट्स में जब लीस्ट कॉमन मल्टीपुल होगा, सो इन 288 मिनट्स ये तीनों बेल एक बार रिंग होगा. सो समझ रहा है. सो 288 मिनट्स के बाद देखो ये 13 मिनट्स में सेकेंड रिंग हो रहा है, ये कितना भी रिंग ये इनका हो जाएगा तो 288 मिनट में
ये तीनों एक बार रिंग होगा। अब ये क्या पूछा है कि इफ ऑल द 3 बेल्स रिंग एट द सेम टाइम एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सो 8 o'clock इन द मॉर्निंग में एक बार रिंग हुआ, सो एट वॉट टाइम दे रिंग टूगेदर, नेक्स्ट टाइम कब होगा? सो इट इज लाइक 288 minutes आफ्टर 8 o'clock, राइट? सो अब 288 minutes आफ्टर 8 o'clock इज व्हाट? सो इसको हावर्स में, क्योंकि ऑप्शन से ये आवर्स में दिया है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इज 288 by 60, राइट? हावर्स में डिवाइडेड बाई 60 करते हैं। सो दैट इज लाइक 4s are 240, 64s are and 48, that is like 4 hours and 48 minutes. So 8 बजे हुआ, so after 4 hours 48 minutes, so that is 12 hours 48 minutes में होगा। See, because 8 plus 4 hours 48 minutes, that is 12 hours 48 minutes में होगा। ठीक है? सो ऐसा क्वेश्चंस में एलसीएम जो भी हर मिनट में ऐसा होता है तो उन चीज़ों का एलसीएम करना है। विल डू अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, आपको और आइडिया पता चल जाएगा। अगेन लुक एट द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2016 इन यूपीएससी। देखो सेम मॉडल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज देर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज। 5 हॉबी क्लब्स है, फोटोग्राफी, एचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। ठीक है? गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे। गार्डनिंग है, सेकेंड डे दिया हुआ है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट एवरी थर्ड डे। देखो थर्ड डे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीट। चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे। ठीक है? एचिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे एंड फोटोग्राफी ग्रुप मीट्स एवरी सिक्स्थ डे। ठीक है? सिक्स्थ डे ये दिया हुआ है। देन हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 days। देखो अगेन सेम, हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट। समझ रहे हो? ऑल द 5 ग्रुप्स मीट मतलब इनका एलसीएम, ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन सेम डे। सो इनका एलसीएम लो 2 3 4 5 का, बिकॉज एवरी 5th day 6th day मीट कर रहा है तो एलसीएम ले रहा 2 2 1s are, देन 3 2 2s are 4, 5 डिवाइजिबल नहीं है तो 3s are 6, देन अगेन टेक 3 1 3 1s are 3 2 5 and 1। so 2 into 5 10, 10 into 3 30, 30 into 2 is 60, 60 is the LCM। so in 60 days में ये लोग एक बार मिलता है, बिकॉज एलसीएम में लीस्ट कॉमन लाइक 60 डेज लगेगा कि एक सब 5 लोग मिलने में 60 डेज लगेगा। सो अगर 60 डेज में लग रहा है तो हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विथ इन 180 days। सो 180 days में कितने बार मिलेंगे? दैट इज 180 by 60 by 60 days में मिल रहा है, सो दैट इज 3 days। सो आंसर इज 3। देखो ये लोग क्या 60th डे में मिलेंगे एक बार, देन 120th डे में मिलेंगे, देन 180th डे में मिलेंगे। सो 3 times they meet। सो आंसर इज 3। सो सेम क्वेश्चन, राइट? सो ऊपर देखो, अगर मान ले आपने 2014 में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता सो 2016 का क्वेश्चन आराम से क्लियर होता था। दैट इज वाई PYQs इंपॉर्टेंट है CSAT में, एंड दैट इज वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन PYQs in my classes also। that is, so again let's do one more question। next question देखते हैं। देखो again same question। देखो let's do this question। सीता and गीता go for a swim after a gap of every 2 days। देखो इधर एक चीज याद करना है, आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days, नॉट एवरी 2 days। इधर क्या दिया इस क्वेश्चन में? मीट द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, इलेक्ट्रॉन एवरी थर्ड डे दिया हुआ, बट इधर दिया हुआ आफ्टर
a gap of every 2 days. So it is originally they are meeting on third day. ठीक है, and here every 3 days respectively. So they are meeting on fourth day. ठीक है, ये क्रूशियल है. इफ देखो सीता एंड गीता swim after a gap of 2 days and 3 days respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? देखो अगेन 3 और 4 का एलसीएम करो. ठीक है, दैट इज लाइक इसका क्या होगा, 3 into 4 दैट इज 12. सो 12 डेज में वो लोग मिलेंगे. सो ऑन 1st January गया, 1st January both of them went for a swim together, and after 12 days is what, 13th January. So 13th January 12 days के बाद they again meet, क्योंकि जो भी कॉमन लीस्ट कॉमन 12 डेज में लगेगा कि दोनों को जाने में. ठीक है, दैट इज 13 January इज द आंसर. सी हियर आफ्टर ए गैप, ये इंपॉर्टेंट है. अगर इफ यू डोंट कंसिडर ए आफ्टर ए गैप एंड यू टेक एलसीएम ऑफ 2, 3, देन इट टर्न्स आउट टू बी 6. सो 6 डेज में अगेन जाएंगे. सो आंसर वुड बी 7th January. सो इसीलिए क्वेश्चन इज नॉट ऑन दे गो on every second day or like that. It is after a gap of 2 days. That is they go on every third day. ठीक है, that's it. So again let's do one more question. देखो 2019 में this again same model question. देखो आप पता चलेगा. There in a school every student is assigned a यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, हर स्टूडेंट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है. ए स्टूडेंट इज ए फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 4. ठीक है भाई, फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर इफ नंबर आईडी इज डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, वेयर एज स्टूडेंट इज ए क्रिकेटर if and only if the identification number is divisible by 6. Cricketer है if identification number is divisible by 6. If every student from 1 to 0 is assigned to a student, every number from 1 to 0 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? देखो again, देखो क्या पूछ रहा है कि सब स्टूडेंट को 1 to 100 से असाइन किया, 1 2 3 सो ऑन टू 100 तक असाइन किया. अब क्या सबको असाइन किया. अब क्वेश्चन क्या बोल रहे कि भाई जो स्टूडेंट है फुटबॉल प्लेयर कौन है, कि जिस नंबर 4 से डिविजिबल है वो फुटबॉल प्लेयर है. सो सारे स्टूडेंट्स है, नंबर 1 to 100 स्टूडेंट्स है. ठीक है, जो भी 4 से डिविजिबल है वो फुटबॉल प्लेयर है. जैसे क्या आएगा, लाइक 4 8 इज डिविजिबल बाय, राइट, डिविजिबल 4 1s are 4, 4 2s are 8, देन 12, 4 3s are 12. ठीक है, द नंबर्स डिविजिबल बाय 4, ये सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 4 है, रिमाइंडर 0 आएगा. 16. ठीक है, जो भी 100 तक सो ऑन. ठीक है, सो ऑन 100 तक. देन क्रिकेटर से डिविजिबल बाय 6, सो ये आएगा 6 12. ठीक है, देन 18 के बाद आएगा 24, सो ऑन 100 तक. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ एवरी नंबर देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल. देखो ये दोनों क्रिकेट और फुटबॉल खेलेगा 12 नंबर पे जो भी जर्सी है. ठीक है, देन सिमिलरली क्या है कि 20 24, ये 24 भी दोनों में कॉमन है, ये भी क्रिकेट और फुटबॉल खेलेगा. ठीक है, दोनों खेलेगा. सो ये एलसीएम टाइप आ रहा है. ऐसा कितने आ रहा है? सो
हमें वो पता करने के लिए क्या करना है, 4 और 6 का एलसीएम करना है. सो दैट इज लाइक 2 से करो, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6. देन एक और सिंप्लीफिकेशन नहीं करता, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 इज 12. 12 इज एलसीएम ऑफ 4 एंड 6. तो अब क्या होगा कि कॉमन नंबर क्या है, वी डोंट नीड टू राइट डाउन ऑल द नंबर्स. सो सेम राइट 12 एंड 12 के बाद 24 प्लस 12, then 36, then 48, then 60, then 72, 84 and 96, that is 100 तक. उसके बाद जाएंगे तो वो 108 हो जाएगा. तो सो वो 100 से ये नहीं आएगा. सो ये एंड पूछ रहा है कि भाई कितने, हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आंसर इज 8B. सो अगेन कि सेम एलसीएम एंड एचसीएफ, देखो जो भी दिया 4 एंड 6 का एलसीएम करो 12 आएगा. सो हर 12 में रिपीट होगा नंबर, मतलब हर 12 के बाद जो भी प्लेयर होगा वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलेगा. सो दैट इज द थिंग. सो यू नीड टू सॉल्व, लाइक यू नीड टू नो हाउ टू यूज एलसीएम, लाइक जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एलसीएम यूज करना है. सी अगेन ये देखो 2021 में पूछा हुआ है. देखो अगर मान ले आपने एक क्वेश्चन पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि लाइक हाउ यूपीएससी रिपीट्स सेम इसी मॉडल का, सेम इसी मॉडल का क्वेश्चन है एंड अगेन सेम इसी मॉडल का क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन पढ़ो, यू कैन योर सेल्फ सॉल्व. सी जोसेफ विजिट्स ए क्लब ऑन एवरी 5th डे. देखो जोसेफ एवरी फिफ्थ डे विजिट करता है. हर्ष विजिट्स ऑन एवरी 24th डे. हर्ष 24th डे में, वाइल सुमित विजिट्स ऑन एवरी 9th डे. एंड ऑल 3 ऑफ देम मेट एट क्लब ऑन संडे. ऑल 3 ऑफ देम मेट एट क्लब. देन ऑन विच डे विल ऑल 3 ऑफ देम मीट अगेन. क्या करना है, एलसीएम लेना है भाई, कितने दिन में एक बार मिलते हैं. सो हियर इट इज लाइक 5. सो 3 का ले लो. सो 3 का, सो 3 5 डिविजिबल नहीं है ये. एंड 3 8s are 24 एंड 3 3s are 8. सो अगेन वी कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई बिकॉज तीनों में कॉमन ऐसा कुछ नहीं है कॉमन नंबर से डिविजिबल हो जाए. सो दिस इज लाइक 8 5s are 40, 40 into 3 is 120, 120 into 3 is 360. सो एलसीएम आ गया 360. सो ये तीनों 360 डेज के बाद मिलेंगे. ठीक है. सो 360 डेज के बाद अब क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ कि इफ ऑल 3 ऑफ देम मेट एट ए क्लब ऑन संडे. संडे को मिला है ऑन संडे, देन ऑन विच डे ऑल 3 ऑफ देम मीट अगेन. अब देखो संडे को मिला, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस 360 इंटू वीक्स. दैट इज 360 by 7 करो तो वीक आ जाएगा. सो दैट इज लाइक 7 5s are 35 and 1 0 and 7 1s are 7. This 3. So 51 वीक्स है प्लस 3 days लेफ्ट है. सो 360 डेज के बाद मिलेगा. सो 360th डे वुड बी 3rd डे आफ्टर 52 वीक्स. सो 52 वीक्स से संडे टू संडे हो गया इस 52 में. देन इधर आएगा मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. जो 3rd डे होगा वो वेडनेसडे होगा. सो द आंसर इज वेडनेसडे. अगेन सेम, जब भी दिया हुआ 3 नंबर बोल रहा है कि फिर तीनों इस टाइम मिलेंगे, फिर दोबारा कब मिलेंगे, देन यू नीड टू अप्लाई द एलसीएम कॉन्सेप्ट. ठीक है. क्वेश्चंस पढ़ो फिर समझ में आ जाएगा. सो दैट इज वाई इसे देखो 2021 में क्वेश्चन है
इज इट डिफरेंट फ्रॉम 2019 और 2019 में ये जो पूछा है और 2016 में जो पूछा है और 2014 में जो पूछा है? इट्स नॉट डिफरेंट, राइट? सिंपल सेम कॉन्सेप्ट है, बस अलग तरीके से। एक तरीके से पूछ रहा है कि भाई क्लॉक रिंग करेगा, वंस दे रिप्लेस इट विथ डेट, वंस दे रिप्लेस इट विथ टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है। सो दिस देन देखो अगेन एक और मॉडल एलसीएम से। सी दिस इज आस्क्ड इन 2020 इन यूपीएससी सीसैट पेपर। देखो व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर, इन चारों में लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है when divided by 3, 4, 5, 6। हर नंबर से डिवाइड करना है। 3 से भी डिवाइड करा तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। If number is divided by 3 then रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अगर 4 से भी किया तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, 5 से भी किया तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए एंड 6 से भी किया तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो भाई अब कॉमन, सबसे कॉमन पूछ रहा है, सबसे, तो कॉमन इज लीस्ट कॉमन, एलसीएम। सो दैट इज लाइक 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम लो, आपको पता चल जाएगा। देखो इस तरीके का क्वेश्चंस का 3, 4, 5 का यू विल डू एलसीएम। देखो इधर टेक 3, 3, 1, 4, 5 and 3 2s are 6। Again take 2, 1, 2 2s are 4, so 5 is not divisible, so 5 and 1। So again further not simplified, 2 into 5 is 10, 10 into 2 is 20, 20 into 3 is 60, so 60 is the LCM। so अब ये क्या है कि 60 is the number which is divisible by 2, मतलब 3, 4, 5 and 6 and 60 divisible है। so 60 के बाद आएगा जो तीनों से डिविजिबल है, दैट इज 120, देन आएगा 180 एट 60-60 इंटरवल्स में आएगा। एंड इधर दिया हुआ रिमाइंडर 2 लीव करता है, तो फिर 62 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 एंड लीव्स रिमाइंडर 2। देन 122 इज द सेकेंड नंबर, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल द 3 नंबर्स लाइक 3, 4, 5, ये चारों नंबर से इट लीव्स रिमाइंडर 2। सो अब इसको क्या करना है, इसी को जो भी एलसीएम आया है उनसे ऑप्शन वेरिफिकेशन करना है। सो 60 को 1012 से डिवाइड करो। अब 12 से डिवाइड किया, सो 60 1s are 60, दैट इज 41, 4, 1, 2, ये 2 भी इधर आ गया। so 6 are 36, 360, so this is not leaving a remainder is 2, rather leaving a remainder 52, ठीक है। so this is not the number, so least number we are searching, right? so then try it for 1022, so 1022 का क्या है 60, again 160 1s are 60, तो 42, so then 2, so 6, then do it like 6 6 are 36, 6 7s are 42, 7s are 42, so 60 into 7 is 420, so it is leaving remainder 2। so 60 से डिवाइड किया तो इट इज लिविंग रिमाइंडर 2 जो भी आ रहा है। सो दिस इज द नंबर। अब दिस नंबर यू डिवाइड इट, जो रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इट लीव्स रिमाइंडर 2 फॉर 3 ऑल्सो, 4 ऑल्सो, 5 ऑल्सो, 6 ऑल्सो।
सो जो भी ऐसा क्वेश्चन दिया इन सारे नंबर्स का एलसीएम करना है एंड वो एलसीएम जितना आएगा, इस केस में 60 आया, ठीक है। अब 60 को जिस नंबर से डिवाइड किया उस नंबर से रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है, वो आंसर है। सो इन दिस केस इधर रिमाइंडर 2 आ रहा है 1022 का, सो 1022। सो लीस्ट 4 डिजिट नंबर लीव्स रिमाइंडर, सो ये लीस्ट नंबर है बट रिमाइंडर 2 लीव नहीं कर रही है, तो इसीलिए ये गलत। सो ये लीस्ट है, बाकी दोनों बड़ा है, सो नो नीड टू वेरीफाई दीज टू ऑल्सो, ठीक है, गॉट इट। सो देन लेट्स डू क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 2022 में पूछा है। देखो 2022 में पूछा है, सेम 2020 वाला ही रिपीट करके। यूपीएससी देखो, यूपीएससी समझ लो आप, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेम, देर इज नो डिफरेंस। क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देखो इधर क्या पूछा, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, इधर बस वही स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 when divided by any one of the numbers leaves a remainder of 3। देखो इधर 5 नंबर दिया है, तो इनका एलसीएम करो, 6, 9, 12, 15, 18। सो एलसीएम इज, जैसे इतने करो 3 1s 3 2s 3 3s 3 4s 3 5s and 3 6s, then again 2 2 1 3 2 2s, so again 5 2 3s, again 3 1 1 2 5 1। सो इधर आएगा एलसीएम कितना आएगा, 5 इंटू 2 इज 10, 10 3s 30, 30 इंटू 2 इज 60, 60 इंटू 3 180। सो एलसीएम इज इक्वल टू 180। अब देखो क्या करना है, एलसीएम आया भाई, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000, स्मॉलेस्ट नंबर लीव्स रिमाइंडर 3। अब जो भी इस नंबर को छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करो, फर्स्ट इज लाइक 180 डिवाइडेड बाय 1063, ठीक है। अब देखते हैं इसका कितना आएगा, 1063, सो दैट इज लाइक 180 इंटू 5 चेक करते हैं, 180 इंटू 5, 8 5s 40, 5 1s 5, 900, सो 900 आ रहा है। सो अगेन 5s 900, so it is leaving remainder 3 6 and 163, right, 163 is the remainder, so 3 is not the remainder। so अब देखो नेक्स्ट का चेक करते हैं, 1073 180, so 1073 का when we take again into 5, that is 900, that is 173 रिमाइंडर आ रहा है। हमें कितना चाहिए रिमाइंडर, 3 चाहिए। सो इधर से देखो फर्स्ट से ही पता चल जाएगा हमें भाई 163 है, जो 180 आएगा, देखो 180 डिवाइडेड बाई, ये नहीं है ये नहीं है, 1083, तो इसका देखते हैं इंटू 180 इंटू 6, 6 कितना आएगा, 180 इंटू 6, दैट इज 0 6 36 and 46 is 48, 6 1s are 6 plus 4, that is 10, 1080, 1080, so leaving remainder 3, so this is the answer, 186 leaving remainder 3, so this is the answer। see, if you see 1183 also leaves remainder 3, but this is not the smallest number greater than 1080 1000, right? so देखो 1183 1183
डिवाइडेड बाई 180 इंटू 7 किया तो ये भी आएगा 7 7 ज़ार 49 7 8 ज़ार 56 7 7 प्लस 5 1160 सो 1160 ना ये भी लाइक 23 रिमाइंडर आ रहा है, सो ये भी नहीं है, सो ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस इज द आंसर 1083। सो इस क्वेश्चंस में क्या करना है, एलसीएम करना है सारे जो भी नंबर्स दिया हो उनका, देन जितने भी एलसीएम आएगा उनको नंबर्स को डिवाइड करो, जो भी लीव्स रिमाइंडर जो भी दिया हुआ है दैट इज द आंसर, ठीक है। यू गॉट इट, ठीक है। देखो सेम मॉडल है, दो मॉडल्स है, यूपीएससी इज रिपीटिंग फ्रॉम दोज मॉडल्स ओनली। देन लेट्स सी one question which is asked in 2020. देखो what is the greatest length such that to greatest length x such that 3 1/2 meter 8 3/4 meter are integral multiples of x। देखो LCM and HCF में क्या है, जहाँ भी आएगा वर्ड्स लाइक ये पॉइंट नोट डाउन करो, एलसीएम यूज होगा जहाँ भी आएगा टर्म्स लाइक लोवेस्ट, ठीक है, लीस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है। जहाँ भी मिनिमम ऐसा टर्म्स आएगा तो एलसीएम यूज करेंगे, एंड एचसीएफ यूज करेंगे जहां भी आएगा वर्ड्स लाइक हाईएस्ट, वर्ड्स लाइक ग्रेटेस्ट, वर्ड्स लाइक बिगेस्ट, वर्ड्स लाइक मैक्सिमम, उधर यूज करेंगे एचसीएफ। सो इसमें क्या यूज करेंगे, एचसीएफ, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एक्स सच दैट 3 1/2 8 3/4 आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स। अब देखो इसको क्या है कि भाई 3 1/2 कैन बी रिटर्न एज 3 × 2 + 1। ये नंबर सिस्टम में वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू राइट दिस नंबर। सो 3 × 2 + 1 ऐसा बाई 2, दैट इज 3 × 2 + 1 इज 7/2। Then 8 3/4 can be written as 4 × 8 + 3 divided by 4 जो भी इधर दिया हुआ। So that is 32, 8 4 जा 32 + 3 35/4, 7/2 35/4 ये है। अब देखो क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट लेंथ। सो क्वेश्चन इज लाइक HCF of 7/2, 35/4। अब HCF क्या, HCF ऑफ फ्रैक्शंस कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला देखो, HCF का फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शंस का देखो, HCF ऑफ न्यूमरेटर बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। HCF of numerator that is HCF of 7, 35 by LCM of 2, 4, that is like HCF of 7/35 is 7, 7 5s are 35, remainder 0 आ गया। सो 7 इज द HCF, 7 by LCM of 2, 4, 4 का 2 1s are 2
2 2s are 4, 2 into 2 is 4, 7/4. अब 7/4 इज द ग्रेटेस्ट. अब इसको देखो, इधर भी उसी फॉर्म में दिया है. सो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, 4 7. सो 4 1s are 4, रिमाइंडर 3. सो दैट इज 1 3/4. इस सर्किल में जाना है. 1 3/4. 1 3/4 इज द आंसर. 1 3/4 इज डी. सो क्या है कि जब 1 3/4 है, उससे ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ x होगा सच दैट ये 3 1/2 एंड 8 3/2 आर मल्टीपल्स ऑफ 1 3/4 होगा. सो यू जस्ट नीड टू नो व्हेन टू यूज HCF एंड व्हेन टू यूज LCM. तो यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंट है कि यू जस्ट नीड टू नो कि भाई किस तरीके का क्वेश्चन से LCM यूज करना है, HCF कैसे यूज करना है. एंड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस LCM से आ रहा है. यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन है, इनमें LCM से थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे फिर ईजी हो जाए. जैसे देखो ये सारे क्वेश्चन है, दे आर नॉट सेइंग LCM करो ये करो, दे आर गिविंग फ्यू स्टेटमेंट्स. यू जस्ट नीड टू नो कि भाई इधर LCM अप्लाई होगा. बस ये पता होने से पूरा आपको आइडिया. देखो सिंपल, ये LCM अप्लाई करना है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में. जहाँ भी भाई 3 एक बार मिल गया, फिर दोबारा कब मिलेंगे, इस इंटरवल में मिला कब मिलेंगे, 5 ग्रुप से मीट 180 डेज कहाँ होगा, इस क्वेश्चंस में. सो दैट इज वाई यू नीड टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसीलिए मैं अपने क्लासेस में सारे PYQs डिस्कस करता हूँ. सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन HCF. तो HCF क्या, लाइक फ्रैक्शन वगैरह बेसिस पे, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन which each of 6/7, 5/14, 10/21 will divide exactly. His options: 30/7, 30/98, 60/147, 60/294. सो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, देखो स्मॉलेस्ट आया है तो इधर क्या अप्लाई होगा, LCM. देखो इधर आया है ग्रेटेस्ट लेंथ, तो ग्रेटेस्ट लेंथ में HCF स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विच ईच ऑफ विल एग्जैक्टली डिवाइड. सो क्या करना है, LCM ऑफ 6/7, 5/14, 10/21 करना है. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, देख LCM का फॉर्मूला क्या है फ्रैक्शंस का. LCM ऑफ न्यूमरेटर्स 6, 5, 10 बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर 7, 14, 21. सो दैट इज LCM ऑफ 6, 5, 10 का कर लो. 6, 5, 10. सो 5 से करते हैं 6, 5 1s are 5 2s are, then 2 3s are 1 1. So again 2 into 3 6, 6 5s are 30. So 30 by HCF of 7, 14, 21. 7, 14 का HCF is 14. 2s are 14, 0. So 7 is HCF. 7 और 21 का भी 3s are 21. So 21, 0 remainder. So 7 is the HCF. So that is 30/7. That's it, simple. So you just need to know क्या अप्लाई करना है, कि कहाँ अप्लाई करना है LCM. बस यही है. End of the class. That's it. Thank you very much for watching. All the best. Bye.